ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਦ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਆ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਰ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਦਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦੀਆ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹੇ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ਓਨ ਵੇਦ ਬਿਰੰਜ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰਿ ਜਾਪ ਨ ਛਾਡਿਆ ਏਕ ਘਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਾ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹੀ ਧਰੀ ਜਗ ਔਰ ਨ ਜਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਿਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆ ਇਹ ਬਤਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕ ਹਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਆ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਆ ਜਪ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਾਉ ਭ੍ਰਮ ਦੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਆ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿ ਬੂਡਤ ਤੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਪਛਤਾਇਆ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ
जग तारन का अवतार बनाया, जपया जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आया। हरि का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। परम सन्मानयोग गुरता गति के सुभायमान क्यावर शादार ताकत जी दे मालक, याहराज होर हाजरा हजूर, दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप। धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हाजूरी अंदर धन धन बाबा भाई झाड़ू साहिब जी के पवित्र अस्थानां ते सत संगत रूप हो करके हाजरियां भर रहे गुरु प्यारेओ, गुरु सवारेओ, सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागे हो जिन्हां नूं सतगुरां दी पावन गोद अंदर सत संगत रूप हो करके बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। अज दा पावन पवित्र दिहाड़ा जबर दा मुकाबला सबर नाल करन वाले शहीदां दे सरताज गुरबाणी रचनहार शांति दे सोमे गंभीरता दे सागर गोरे अर्जुन प्रताखिहार प्रताख परमेश्वर रूप धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का पावन पवित्र शहीदी दिहाड़ा है। अज दे दीवान अंदर आपा धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की शहादत का प्रसंग सरवण करांगे। कुछ आपा प्रकाश को लैकर के गुरता गति तक संखेप रूप में विचार सरवण करांगे। उस तो उपरंत शहादत के कारण की सन
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ। ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਵਈਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਚਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਤ ਧਾਰਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਬਾਲਕ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ जी के ग्रह ਵੇਖੀ, ਧੰਨ माता ਭਾਨੀ जी की कुखों गोइंदवाल साहब की धरती जो सतगुरां दा नानका पिंड है। सो नानके घर विच ही सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी का अवतार होया है। ताई भट्ट साहबाना ने अगला वचन लिखना कीता है कि कै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे कि हे धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, तुसीं तां जन्म लैंदिआं ही गुरमत दे धारनी हो गए ते रब नूं पहचानिया है। क्योंकि उस वेले धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के नाना जी धन गुरु अमरदास पातशाह जी गुरियाई के मालक। सो जदों महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह जी का अवतार होया सो मुड़ तो ही गुरु की बातें धारनी होए, परमेश्वर रूप करके धन गुरु अमरदास जी को पहचानिया है। ते बचपन दे विच ही गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी को कई वार दिते जो असी इतिहास में पढ़ते हाँ। सो माता भानी जी सेवा करया करते ने ते अपने पुत्र श्री अर्जन देव जी को आरे ला छड्डदे ने कि सेवा करिए। सो एक खिद्दो तैयार की है, गेंद तैयार की है लीरा टापियां दी। सो वो गेंद रेड़ देनी ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने मगर मगर रेड़ दे जाना, फड़ के लै आउणी। उन्ने समय विच मां भानी की सेवा करते रहे। सो ये बच्चे नूं आरे लाउण दा एक ढंग तरीका सी, जिथे भैणां मातावां सेवा करदियां ने। जो बच्चा कुशल हो फिर सेवा करनी औखी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को भी सामना होंदा है जां किसी ढंग नाल आरे लाउणा पैंदा। सो वार वार गेंद रेड़दे सन। एक बार गेंद रेड़ी, रिड़दी रिड़दी गेंद जिहड़ी सी गुरु अमरदास पातशाह जी के कमरे में चली गई, जिथे महाराज आराम कर रहे सन, सुखासन स्थान। दरवाजा थोड़ा जिहा खुला होया सी। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह रिड़ते रिड़ते मगर ही गेंद ते चले गए। अगे दरवाजा थोड़ा खुला होने करके अंदर ना जा सके। पहला अपने छोटे छोटे हाथ ला करके दरवाजा खोलने का यत्न किया, ना खुला। फिर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपना सिर ला करके ढक के दरवाजा खोलिया ते अंदर चले गए तो गेंद के मगर से, पर धन गुरु अमरदास जी के पलंगे को जा करके गेंद का चेता भुल गया तो पलंगे को हथ पा के खड़े हो गए। इन्ने चलो बीबी भानी जी भजे आए कि पिता जी आराम कर रहे हैं, उन्होंने आराम में फर्क पै जाएगा। बड़ा भय सी मन में। सो जो पलंगे हथ पा करके खड़े हुए गुरु अर्जन देव जी, पलंगा हिलिया ते गुरु अमरदास जी के नेत्र खुले ने। इतिहास में वचन दर्ज ने, सतगुरु अमरदास पातशाह जी के मुख तो वचन निकले सन, केड़ा प्रगटिया पुरख है भारी, जिस मंजी हलाई साडी सारी। महाराज ने वचन कहे, केड़ा भारी पुरख प्रगट होया है जिसने साडा मंजा ही हिला के रख दिता। इन्ने चਿਰ बीबी भानी जी कहन लगी, महाराज पिता जी तुहाडा दोधा है दोधा। महाराज की रचना तो दूजा वचन निकलिया, दोहिता पानी का बोहित। ये दूजा वार दे दिता महाराज ने। पहला वार भारी गुरु होने का, दूजा वार सो दोहिता बाणी का बोहिता। बोहिता का अर्थ का जहाज की, बाणी का जहाज रचना। सो ये वार भी दिता है। सो जिवें बच्चे का सुभाव होंदा है मंजे के उपर चढ़न का यत्न करना, भावें चढ़िया नहीं जाता, बच्चा लातां चुकदा। तो यो गुरु अर्जन देव पातशाह जी लात पुत्र चुकते हैं, मंजे से चढ़न का यत्न करते हैं। धन गुरु अमरदास जी प्रसन्न होकर के कहन लगे, पुत्र जी अजे लग चुके ता न चलो, एडे काले न पाओ, अजे तुहाडी कोई आई नहीं पैनी, पहला तुहाडे पिता को कोई आई आवेगी ते अपने पिता को तुसीं लै लिओ, एडे काले न। तो ये दो बार होर हो गए।
एक पिता को भी गुरियाई की पदवी का वर मिल गया, पुत्र को भी मिल गया। हुण बीबी भानी की खुशी की हद ना रही, जिसे पति को भी गुरु होने का वर मिल गया, पुत्र को भी गुरु होने का वर मिल गया। पिता पहला गुरु पदवी से कितने बड़े भागा वाली बीबी भानी है। तो हथां में फड़ करके तोलिया तो महाराज कहने लगे बड़ा भारी गुरु होगा, जिवें भारी चीज सो गुरु प्यार वाली डोलदी नहीं। ये भाव सी कि ये वड्डी तो वड्डी विपता आने ते भी डोलेगा नहीं। बीबी भानी जी कहन लगी महाराज पिता जी ये तुहाडा दोहता ना बड़ा चलाक हो गया। सवारे कहते पुत्री इसने की चलाकी की है। पिता जी महाराज मैं गेंद नाल आरी लाया सेवा कर रही सी, एक बार गेंद थोड़ी जी ज़्यादा रिड़ गई, तुहाडे कमरे दे विच आ गई, दरवाजा बहुता नहीं सी खुला भी मगरे मगर रिड़दा आया। पहला इसने छोटे छोटे हत्थां नाल दरवाजा खोलण का यत्न किया, खुला नहीं। फिर इन्हें अपना सिर नाल ला करके धक के दरवाजा खोलिया तो अंदर आ गया। वेखो कितनी चलाकी है। महाराज धन गुरु अमरदास कहन लगे धीए ये चलाक नहीं गा, चलाक तेरा बड़ा पुत्र होगा जिहदियां चलाकियां जग जाहर होणगियां। ये ते ज्ञानवान है, इसने ये दरवाजा अपना सिर ला के नहीं खोलिया, आने वाले समय में अपना सिर दे करके धर्म के दरवाजे खोलेगा। ये बचन तो बचपन के धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने कर दिते सन। ताई भट्ट साहिबाना ने बचन किया था जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ, कल जोड़ कर सुजस खाणिओ। ये धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी तुसीं तां जन्म लेंदे गुरमुख के धारनी हुए, परमेश्वर को पछाणिया है। कल भट्ट जी कहते असीं तां केवल हाथ जोड़ करके तुहाडा श्रेष्ठ जस ही कथन किया है। भगत जोग का जैदवार हर जन को पाया, भगती के योग में तुसीं जितन वाले हो। सो वाहिगुरु ने ज्ञान स्वरूप भी तुहाडे विच भाग कीता, भाव ज्ञान रूप करके प्रगट किया है। शब्द गुरु प्रकाशिओ हर रत्न बसाया, शब्द गुरु का हिरदे विच प्रकाश होया तुहाडे, तुहाडी रसना में भी शब्द वसदा है। सो अथवा धन गुरु ग्रंथ साहिब में भी शब्द गुरु का तुसीं ही प्रकाश किया है। तुहाडी रचना में भी शब्द ही वसदे जी धोती बाणी आई, तिन सबली चिंत मटाई। ये बाणी भी तुहाडी रचना राही संसार ते आई है। शब्द गुरु प्रकाशिओ हर रसन बसायो, गुर नानक अंगद अमर आग, उत्तम पद पायो। धन गुरु नानक देव पातशाह के चरणों का लग के गुरु अंगद देव जी ने, धन गुरु अंगद देव जी के चरणों न लग करके धन गुरु अमरदास जी ने उत्तम पदवी पाउणा की है। गुर अर्जुन घर गुर रामदास भगत उतर आयो। इस तरह धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह धन गुरु रामदास जी के घर में मानव के परमेश्वर की भगती का ही अवतार धारणा किया है। समा बीतता गया, बचपन जेड़ा नाना सतगुरु की गोद बतीत होया है। बचपन के बड़िया रहमतां प्राप्त कीतियां ने। फिर तो सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दूता गति के मालिक बने। धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपना शरीर आरोप कर लिया है। तो फिर सीधा सतगुरु जी के चरणों में धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी रहे हैं। अति पिता सतगुरु जी का हर एक बचन मनिया कमाया है। जिथे पिता जी ने हुक्म करना झट ही जान वास्ते तैयार हो जाना, कदे ना मुकरना करनी, हुक्म सिर मत्थे मनना। एक बार धन गुरु रामदास जी के ताया जी के पुत्र बाबा सहारीवाल जी लाहौर तो चल करके आए। उन्होंने बेटे का विआह से गुरु रामदास जी को आखण वास्ते आए, बेनती करने वास्ते सच्चे पातशाह तुसीं चलो, तुहाडे तो बिना खेड बननी नहीं। सो धन गुरु रामदास पातशाह जी कहने लगे साढ़े जाया करना नहीं गा, तेरे वास्ते औखा होगा कि गए तो संगत बहुत हो जाएगी, सामना होगा। तो इस करके
ਸਾਡੇ ਜਾਇਆ ਸਰਨਾ ने बाबा सहारी मल में कह लगे महाराज जी कोई अपना पुत्र भेज दिओ। वड्डे पुत्र पृथ्वी चंद को आख्या बेईमान सी, उन्हें मना कर दिता। सोचता जी मैं चला गया तो आउंदे नूं किते गुरु अर्जन देव ही सो गुरु पदवी ते ना बैठ जा। सो इस करके बेईमानी करके जान तो मना कर दिता। बाबे महादेव ने मना कर दिता। जदों धन गुरु अमरदास सो वाहिगुरू धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी हुक्म होया कि पुत्र जी तुसीं अपनी ताया जी दे नाल जाओ, 1 महीना ताया जी दे घर रहना है ਅਤੇ अपने भरा के विआह कारज में हथ बटाउणा है। उस तो उपरंत धर्मशाला में रह के गुरबाणी कीर्तन गुरबाणी के विचार संगत को श्रवण करवानी है। सो उस वेले झट ही तैयार हो गए। बड़े सोहने बचन गए जो इतिहास दर्ज ने। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे पिता जी ये तो तुसीं मैनूं खुशियां दे समागम में भेजण लगे हो, जे किते तुसीं मैनूं उत्थे भी भेज देना भी जिथे मेरी जान नूं भी खतरा होए मैं उत्थे भी जाण नूं कदी मना नहीं करांगा। ये तो मैं आनंद लैण जाना विआह शादी विच खुशियां ने। सो झट ही तैयार हो गए ने। मां भानी के चरणों ते मत्था टेकिया, सारी गल दसी। मां ने सो शादी नाल लाया है, मत्था चूमिया है, असीस देना कीती पूता माता की आसीस। निमुख न बिसराओ तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह लाहौर गए, विआह कारज कीता, धर्मशाला में रहे, दर्शना वास्ते तरफ रहे सन। धन गुरु रामदास जी का हुक्म सी जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ सदीए ना उन्ना चਿਰ आउणा नहीं। 2 साल रहे ने लाहौर, दर्शना वास्ते तरफते रहे ने पर अपने आप आए नहीं। अंदर प्रेम का उछाला पैदा होया। अंदरले प्रेम ने अखरां का रूप धारण किया। कलम फड़ी कागज की हिक दे उपर, सो वो अंदरले प्रेम के अखर बाणी के उचार कीते। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिल्क करे चातर की न्याय। त्रिखा न उतरै सांत न आवा, फिर दर्शन संत प्यारे जियो। हाउ भोली जियो भोल गवाए, गुरदर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। सो ये शब्द उचारिया। सतगुरु रामदास जी के कोल चिट्ठियां भेजियां, 2 चिट्ठियां भेजियां। पृथ्वी चंद ने सतगुरां दे कोल जाण नहीं दित्तियां। तीजी चिट्ठी सतगुरु रामदास जी के कोल पहुंची। एक घड़ी न मिलते तां घर जुग होता, कद मिलिया फिर दुख भगवंता। जदों ये चिट्ठी पढ़ी झट ही धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब जी को गुरु अर्जन देव जी लैण वास्ते लाहौर भेजिया है। सो बाबा बुढ़ा साहब जी सतगुरां दा हुक्म मन करके श्री अर्जन देव जी लाहौर को लैके आए। सो जदों अमृतसर साहब जी के दर्शन होए, झट ही मत्था टेकिया जोगों नगर नूं। सो दरबार में पहुंचे ने, गुरु रामदास जी के चरणों में मत्था टेकिया है। इन्ना प्यार में आए, नेत्रां दे विचों हंझूआं दे नाल चरण धो दिते ने। सतगुरु रामदास जी के नेत्र भर आए, मोढियां तो फड़ करके शादी ना लाया, बड़ा प्यार किया, नाल सिंहासन ते बिठा लिया है। सो आख्या पुत्र जी चिट्ठी तुसीं एक ही भेजी है, पर थल्ले नाल दिया लिखिया है। जे चिट्ठी एक है तो एका लिखना चाहिए सी। आख्या महाराज पिता जी मैं तो 2 पहला भेजिया है, पृथ्वी चंद ने लईया है, वो कहता मैं तुहानूं दे दित्ती। मारे कहते सानूं तां मिलिया नहीं। पृथ्वी चंद ने पूछिया, साफ ही मुकर गया। बड़ी बार महाराज ने समा दिता पर नहीं मन्निया। तो उस वेले चरणों की सौं खा गया, तुहाडे चरणों की सौं लगे मैं नहीं कोई चिट्ठी फड़ी। महाराज ने सिख नूं भेज करके घरों चोला मंगाया पृथ्वी चंद का, तो चोले की जेब विचों निकला। शर्मिंदा होया। महाराज कहते इन्ना निकम्मा साडे चरणों की झूठी सौं खा गया है। सो महाराज ने उस वेले आख्या चौथी पौड़ी जिहड़ा उचारेगा वही गुरियाई का माल होगा। और पृथ्वी चंद कितों उचार सकता सी जिहड़ा केवल दुनियावी कार विहार से जानता सी, पर अंदर की खेड़ नहीं सी बनी। चौथी पौड़ी भी फिर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने उचारण की है। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर मह पाया। सेव करी पल चसा न विछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हम भोली जियो भोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ।
सो ये पौड़ी उच्चारण की धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने 5 पैसे नरेल रख करके मत्था टेक दिता ਅਤੇ अपनी थाल ਤੇ गुरु पदवी बख्शिश की गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने। भट्ट साहिबाना ने बचन लिखिया है, अंत न पावत देव सभा मन इंद्र महाशिव जोग करी, हुन वेद बेअंत विचार रहे हर जात न छाड्या एक घरी, मथुरा जन का प्रभ दीन दयाल संगत श्रेष्ठ निहाल करी, रामदास गुरु जग कारण का गुर जोत अर्जुन बाहे धरी। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने संसार नूं ताਰਨ वास्ते गुरु नानक की जोत धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे विच कमना कीती है। सो विरोध तो उस दिन तो ही घर विचों सब तो पहला गुरु अर्जन देव जी का शुरू होया। सो वड्डे भरा ने सतगुरु रामदास जी के वड्डे पुत्र प्रिथी चंद ने बड़ा विरोध किया कि गुरियाई का हक मेरा सी, तुसीं इहनूं गुरियाई क्यों दित्ती है। धन गुरु रामदास जी कहण लगे, पुत्र ये खेड तुहाडे तो ही है। सो नहीं उस वेले मन्निया, झगड़ा किया धन गुरु रामदास जी के नाल भी। कहन लगा, मेरी सरकार दरबारे बड़ी चलती है, मेरे को धन बड़ा है, मैं तुहानूं 2 प्यो पुत्तां नूं जेल में सुट करके फिर गुरु बन के विखावांगा। इस तरह के बोल भी धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह प्रिथी चंद ने कहे। महाराज ने इसको समझाउण वास्ते ढुलकी बाणी का शब्द भी उचारिया। 1200 अंक ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। सारंग महला चौथा, काहे कूट झगड़त हाओ संग बाप, जिनके जने पटीरे तुम हो तिम से झगड़त पाप। मारे कहते पुत्रा कादे वास्ते अपने बाप नाल झगड़ा करता है, जिस माँ बाप ने तेनू पैदा किया पाल पोस के बड़ा किया, उस माँ बाप नाल झगड़ा करता है। पुत्रा बहुत बड़ा पाप, ये पाप तो बच जा। कहने लगा, मेरे को धन बड़ा जी। मारे कहते, जिस धन का तुम गर्व करत हो, सो धन किसे न आप। जिहड़े धन का तुम हंकार करदा ना, वो धन किस दा अपना नहीं। अज तेरे कोल या कल पता नहीं किहदे कोल होना है। खिन मह छोड़ जाए विखिया रस तौ लाग गया पछताप। ये विषयां दे रस विच जिहड़ा तू फसिया होया, छिन दे विच छड़ जावेगा, बाद विच पछताउंदा ही रवेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो अखीरली पंक्ति उच्चारण की सी, उपदेश करता है नानक जन तुम कहो, जो सुनो तो जाए संताप। मारे कहते, मैं तो तेन पुत्रा उपदेश देना, तू सुधर जा। ये गुरियाई की खेड जी धुर तो आती है, मेरे वास्ते की गल नहीं। ये जिमें परमेश्वर वालों आता है उमें मैं अगे खेड रखी है। जे उपदेश सुन के कमावेगा तो तेरे कलेश झगड़े दुख दूर हो जाएंगे, नहीं तो दुखी होगा। नहीं मन्निया प्रिथी चंद, इसने भी जतन किए। गुरु अर्जन देव पातशाह ने बड़ी ईर्खा की, बड़ा वैर रखिया। जो बाबा बुढ़ा साहब जी के बचनों के नाल धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के गृह विखे सुमहान योधे सपुत्र मेरी पीढ़ी के मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब का अवतार होया है। सो बाबा बुढ़ा जी ने बचन किया सी, माता गंगा जी को, मां तुमरे गृह प्रगटा कोई योधा, जिसको बालना किन्हू सोधा। तेरे घर में ऐसा योधा पुत्र पैदा होगा जिहदे वर्गा होर कोई नहीं होगा। सो गुरु हरगोबिंद साहब का अवतार होया, फिर भी प्रिथी चंद टलिया नहीं। 40 दिनों की उम्र सी महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी की, जदों सोभी देई नाम की दाई को लालच दे करके अस्त्रा को जहर ला करके गुरु हरगोबिंद साहब को मारने वास्ते भेजिया, पर धन गुरु हरगोबिंद साहब ने उस दाई का ही अंत कर दिता सी। दूजी बार एक ब्राह्मण को जिहड़ा महाराज के साहिबजादे नूं खिडाया करता सी, दही आदि खवाया करता सी, उहनूं लालच दे के जहर दे के भेजिया कि तू दही विच जहर मिला के सो गुरु अर्जन देव के पुत्र हरगोबिंद नूं मार दे। सो ब्राह्मण भी लालची बस हो करके आया, जहर खवा के दही विच खवाउण लगा, महाराज ने खाधा ही नहीं। आखिरकार जदों गुरु अर्जन देव पातशाह ने वचन किया, तब ब्राह्मण उल्ट करके धरती से डिगा, तर्क तर्क करके मरिया सी। जिहदा जिक्र गुरु की बाणी में गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने भैरव राग किया है। भैरव महला पंजवा, लेख न लागू दिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण हुआ हुए कै सूल। सो कहते थोड़ा जा भी जहर का लेप नहीं लगा साडे साहिबजादे नूं, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, धार कृपा प्रभ हाथ ते रखिया, हर गोबिंद नवा नरोल।
ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁਆ ਹੋਏ ਕਾ ਸੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਲ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਗ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਾ। ਸੋ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ। ਆਖਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਦੇਵ ਨੇ ਐਸੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਾਮਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਐਸੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਾਲਕ ਬਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1645 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। 1645 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। 1645 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1647 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੀਰਥ ਵਸਾਇਆ। 1653 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1656 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1659 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 1660 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਣਾ ਕੀਤੀ। 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਗੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਭਾ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਆਏ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਖਵਾਵੇਗੀ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਝੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਲਾਗੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਲਿਖ ਤੁਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
नाले कहा है कि चलो कोई गल नहीं, मेरी धी सिखां की माता से करावेगी, इस हंकारी की लड़की का रिश्ता मंजूर ना किया जाए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने उस वे फैसला लिया, जे गुरु की संगत को मंजूर नहीं तो सानू भी मंजूर नहीं, क्योंकि इन्ना बड़ा मान सतगुरु की संगत को दिंदे ने। तां ही अज आप गुरु की संगत में अरदास करवाने तो गुरु साहब संगत की अरदास करवान करते हैं। तो गुरु प्यार वालियो, कर्म कारण सब कुछ आप महाराज समर्थ ने, पर भाई गुरदास जी लिखते हैं कर्म कारण समर्थ है, साध संगत का करे कराया। भावें सतगुरु जी सब कुछ कर्म कारण की समर्थ ने, पर जो गुरु की संगत कह दे महाराज वचन मोड़ दे नहीं। सो लागी वापस मोड़ दिते। चंदू इस गलों महाराज का वैरी बन गया। ये सी घरेलू कारण, ये नहीं कि चंदू बरी है या पृथ्वी चंद बरी है, नहीं। गुनाह इन्हों का भी बहुत बड़ा है, पर इन्हों नालों भी किसी का बड़ा गुनाह है, वो दूर रहते जे। एक सी शेख अहमद शाह सरहंदी, जो शेख फतेह का चेला सी, गुरु घर का वैरी। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो, जदों सतगुरु पातशाह जी ने 1647 के तरन तारण तीर्थ की रचना की है, तो जिहड़ी संगत शेख फतेह की कबर से जाती सी, वो संगत गुरु घर आउण लग पई। जदों उधरों संगत घट गई तो जिहड़ा शेख फतेह का चेला सी अहमद शाह सरहंदी, वो गुरु घर का वैरी बन गया कि मेरे साडे गुरु की संगत घट गई है। इस गलों वैरी बन गया, पर लोगों को सोझी आई कि इतों कबर तो कुछ नहीं मिलना, मिलना तो गुरु को सब कुछ है। सो शेख अहमद शाह सरहंदी मौका भालदा भी कदों ना होवे गुरु अर्जन देव को खत्म किया जाए। उधर अकबर बादशाह का राज सी। अकबर बादशाह का पुत्र शहजादा सलीम, जिहदा नाम जहांगीर भी है, पहला नाम इसका शहजादा सलीम सी। तखत पर बैठ करके इसने अपना नाम रखा जहांगीर। जहांगीर फारसी का शब्द है, जिहदा जहां का अर्थ जहान संसार, गीर का अर्थ पकड़ना, मुट्ठी विच करना, भाव कि मेरी मुट्ठी में सारा संसार है, मैं राजा हूँ, ये उसका तखलस सी। सो गुरु प्यार वालियो, जिहड़ा जहांगीर सी, ये जन्म तो लैके ही नकम्मा सी, भैड़े कर्म करने वाला सी, अयाश किस्म का शराबी गुलाबी बंदा सी। अकबर बादशाह गुरु घर का श्रद्धालु सी। अकबर बादशाह का पोतरा जहांगीर का लड़का, जिहदा नाम सी खुसरो, ये भी अकबर बादशाह के नाल कई बार गुरु घर आया, यदा भी जीवन बदल गया। इस करके अकबर बादशाह चाहता सी कि मैं अपनी राज गद्दी अपने पोतरे को देवां, जहांगीर को ना देवां, क्योंकि इसका जीवन ठीक नहीं। जहांगीर ने उस वेले शेख अहमद शाह सरहंदी नाल मेल किया, क्योंकि शेख अहमद शाह सरहंदी का मान सम्मान सी इस्लाम दे विच, राजे भी उसकी गल मनते सन। जहांगीर ने आख्या है कि मेरा पिता मेरे उल्ट है। अपना तो कोई नहीं ना दसदा हुंदा कि मेरे च की गलतियां हैं, दूजे का गुनाह तो सारे ही कढ़ लेंगे, पर अपनी गलती कोई नहीं कढ़दा हुंदा। जदों किसी कोले जाके कोई शिकायत करता ना, उदों इदा ही कहता है कि वह फलाने का ही गुनाह है, मेरा गुनाह कोई नहीं गा। पर पता उदों लगता है जो आमने सामने बह के गल होती, कौन गलत तो कौन सही। ध्यान देना। सो जहांगीर कहन लगा है कि मेरा पिता मेरे उल्ट है, राज गद्दी का हक मेरा है, पर वो अगे मेरे पुत्र को देना चाहता है। तुहाडा इस्लाम दे विच बड़ा मान तान है, तुहाडा वचन कोई नहीं मोड़दा, तुसीं मेरा न्याय करो, मैनूं राज गद्दी दिवाओ। शेख अहमद शाह सरहंदी कहन लगा है, राज गद्दी मैं तैनूं दिवा देवांगा, पर तैनूं मेरा एक काम करना पड़ेगा। जहांगीर ने आख्या तुसीं जो आखोगे मैं वही करांगा। शेख अहमद शाह सरहंदी कहन लगा, राज भाग मैं दिवावांगा, पर राज गद्दी प्राप्त करके एक काम करना है। वो काम की है कि गुरु नानक की गद्दी है, कि वह पंजवां वारस गुरु अर्जन देव, जिहदे करके इस्लाम नूं बहुत वड्डा खतरा है। जिथे हिंदू भोले भाले उन्हां दे नाल जुड़ गए, उत्थे कई भोले भाले मुसलमान भी उन्हां दे सिख बनते जाते हैं। मेरी इच्छा है कि इस गद्दी नूं सदा वास्ते खत्म कर दिता जाए, तां ही इस्लाम का बचाव हो सकता है। जहांगीर ने यह शर्त मनी। अकबर दे विच पै करके शेख अहमद शाह सरहंदी ने राज गद्दी जिहड़ी अकबर तो शहजादे सलीम नूं जहांगीर नूं दिवा दी है, पर यह फिर भी सुधरिया नहीं। इसने
उस वेले अकबर बादशाह का एक दोस्त सी अब्दुल्ला, बड़ा प्यारा दोस्त सी, इन्हें जहांगीर ने मार दिता सी, जिस करके अकबर फिर उल्ट होया, चाहता सी कि हुण मैं अपने पोतरे नूं इस थां ते बिठा देवां, पर उन्ना चिर देर हो गई सी। थोड़े दिनों बाद अकबर की मौत हो जाती है। खुसरो बगावत करदा 350 बंदा उहदे नाल भजदा दिल्ली तो। जहांगीर का राज कायम हो चुका सी। जहांगीर ने अपने सिपाही उहदे मगर ला दिते कि पल पल की खबर मैनूं देनी, कित्थे जांदा की करदा है, जिहड़ा भी इहनूं पनाह देवे उहनूं मार दिता जावे। हुण खुसरो चलिया है, उहदी इच्छा सी कि मैं लाहौर के तख्त पर कब्जा करके जंग करांगा ते राजगद्दी प्राप्त करांगा। पर वो चलदा चलदा तरन तारण पहुंचया गुरु अर्जन देव पातशाह के दरबार में, मत्था टेकिया, उन्हें गुरु के लंगर में प्रशादा भी छकिया। ये गुरु नानक के घर का लंगर, इत्थे कोई भी आकर के छक सकता है। सो महाराज के कोल मदद मंगी, महाराज कहते गुरु घर में ये राजसी झगड़ियां वास्ते पाया नहीं, थोड़ी बहुती चाहिए तो मिल जाएगी जे कोई गुजारे वास्ते। सो थोड़ी बहुती मदद की है, वो भी कोई इस करके नहीं कि राज भाग के उल्ट भड़काया है। पर जो खुसरो लाहौर तक पहुँचना सी, पर वो पहला ही फड़िया गया। 350 साथियों के समेत फड़िया गया है। वो साथियों को बड़ी बेरहमी नाल कतल कर दिता जहांगीर ने। अपने पुत्र खुसरो दी अखां कढ़ करके जेल में पा दिता, क्योंकि जिहड़ा राजगद्दी का सिस्टम ना अज भी है तो पहला भी सी, जिहड़ा लीडर हुंदा है, राजा हुंदा, किसी का सका नहीं हुंदा, अपने सके पुत्तां नूं धीआं नूं नहीं बख्शदा। औरंगजेब ने कुर्सी वास्ते अपने भरा मारे, अपना प्यो मारिया, अपनी भैन मारी, अपनी धी मारी। कुर्सी का यार बंदा कदे किसी का सका नहीं हुंदा। मतां किते सोचिओ भी तुहाडे नाल किते प्यार करदा होवे, नहीं, जिन्ना चिर तुसीं उहदा साथ देई जाओगे तुहाडी सहायता करेगा। जिद्दन किते तुसीं फस गए, उहनूं दस्सिया कि मैं भी फसदा है, उस दिन तुहाडे तो पासा वट के आखना ये तो मैं मेरा तो इन्ना संबंध ही कोई। अज भी इदां हुंदा ही है। ध्यान देना, रहो विचार, मैं इस विषय वाल बहुता ना जावां। सो गुरु प्यार वाल जहांगीर बादशाह ने उस वेले चंदू के कहण ते होर मौलवियां के कहण ते सो वारंट जारी कर दिते सतगुरां दे बहाना ते पहले ही भालदे सन। महाराज ने कहा है कि तुसीं खुसरो की मदद की है, इस करके तुहानूं 2 लाख रुपया जुर्माना लगाया जाता है। सो गरीब नवाज पातशाह जी ने आख्या 2 लाख ते की 2 रुपये भी नहीं मिलते। ये गुरु की संगत की माया है, ये राजसी झगड़ियां वास्ते नहीं। अज हुण गुरु के सिख ही कई थावां ते गुरु घर की माया नूं झगड़ियां चलाउण लगे, किते केस चलन लगे एक दूजे के। सो अवदेशां दे विच बहुते चलदे हैं। रहो विचार। सो गुरु प्यार वालिओ, महाराज ने इनकार कर दिता है। फिर जो वारंट जारी हुए, जाना तो पैना ही सी महाराज ने। महाराज ने उस वेले अपने साहिबजादे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने, जिन्हां की उम्र उस वेले 11 साल की सी, 12वां साल चल रहा सी, तख्त के उपर बिठाया। 5 पैसे ले अगे रख करके मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया, मत्था टेकिया ते आख्या अज तो बाद ये 6वीं थां ते गुरु पदवी दे। सो सतगुरु पातशाह ने आप तैयारा कर लिया। 5 सिख नाल ने, भाई बिधी चंद साहब, भाई पैड़ा जी, भाई जेठा जी, भाई नगाहा जी, भाई प्राणा जी। सो ये 5 ब्रह्म ज्ञानी सिख सतगुरां दे नाल लाहौर गए ने। महाराज पहले ही गुरियाई दे दी, महाराज को पता से असं वापस नहीं होना। सो लाहौर की धरती पर कई सिखा ने, शरधावान सिखा ने महाराज के घर में चरण पवाए। सो फिर आखिर सतगुरु पातशाह बादशाह की कचहरी में गए। सो सतगुरां ने आख्या कि ना असीं किसी की मदद की है, ना किसी को भड़काया है। रही गल 2 लाख जुर्माने की, 2 रुपये भी गुरु घर के नहीं मिलणगे। सो असीं कोई कारोबार नहीं चला रहे, गुरु की संगत की माया आती है तो गुरु के लंगर वास्ते लगती है। सो इस करके कोई जुर्माना नहीं। कोल खड़े मौलवी कहन लगे तुसीं एक ग्रंथ रचिया है, जे उस ग्रंथ के विच तुसीं 4 बोल मुहम्मद साहब की तारीफ के लिख दो तो तुहाडा जुर्माना माफ कर दिता जाए। महाराज कहते वो साडी बस की गल नहीं, वो तो धुरकी बाणी आई दिन सगली चिंत मिटाई, वो असीं कुछ नहीं कर सकते। धुरकी बाणी है, वो किसी बंदे की सिफत नहीं लिखी जा सकती। सो
फिर गुरु प्यार वालियो होर भी कई सवाल किए गए। आखिरकार बादशाह ने चाल खेडी है। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी को सुमुर्तजा खान और चंदू के हवाले करके आप किसी पासे चला गया ताकि मेरे से दोष ना आवे, मैं दूर होवांगा तो लोगों को कल को कह सकता मैं तो इतने है ही नहीं सी जी जो गुरु अर्जन देव जी शहीद किया। इस गल का असर भी होया। अज तक सारे विद्वान चंदू ही दोषी मनी गए, बादशाह को बरी करी गए कि बादशाह का गुनाह ही कोई नहीं। चंदू भी दोषी है तो बादशाह उदों भी बड़ा दोषी है, क्योंकि बादशाह जहांगीर की असी स्वै जीवनी पढ़ीए, वो स्वै जीवनी जिहदा नाम है तुझके जहांगीरी, फारसी में लिखी हुई किताब, वो 35 नंबर पेज से उन्हें आप लिखा कि गुरु अर्जन देव जी को मैं मरवाया। उन्हें खुद आप अपनी जीवनी में लिखा कि शक ही कोई नहीं रह जाता। सो गुरु प्यार वालियो उस वेले आप सिंध में चला गया है। इधर मुर्तजा खान हुक्म होया सी कि गुरु अर्जन देव जी का घर बार जब्त कर लिया जाए तो इन्हों खत्म कर दिता जाए। सो मुर्तजा खान ना रलिया चंदू। चंदू अपने घर में गुरु अर्जन देव पातशाह लै आया है। ड्योढ़ी में 5 सिखां कैद किया गया है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह अगे एक कमरे में लिजाया गया है। चंदू ने सवाल किए कि जां तो तुसीं इस्लाम कबूल करो, जां फिर 2 लाख जुर्माना भरो, जां फिर तुसीं अपने ग्रंथ में 4 शब्द मुहम्मद साहब की तारीफ से लिखो। तो चौथा उन्हें अपनी गल भी नाल जोड़ दी, जां मेरी लड़की का रिश्ता मंजूर। उन्होंने 4 कर दिया, उन्हें अपनी भी गल नाल जोड़नी सी। महाराज कहन लगे इस्लाम तो असीं कदे कबूल नहीं करांगे, सानू दसो कि इस्लाम कबूल करने नाल मौत नहीं आवेगी। कहते जी मौत आवेगी, कि दुख सुख नहीं आता मुसलमानों? कहते दुख सुख भी आते हैं। कहते जो सब कुछ एक हो रहा है फिर अपने धर्म में ही रवांगे, दुख सुख भी अपने धर्म भोगांगे, मौत भी अपने धर्म की कबूल करांगे। दूजी गल सो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिहड़े 4 तारीफ के शब्द लिखण की गल है वो साडी मर्जी नाल कुछ नहीं होया, वो अकाल पुरख की बाणी है तो अकाल पुरख की मर्जी नाल सब कुछ होया, वो असीं कुछ नहीं कर सकते। सो तीजी गल जिहड़ी है जुर्माने की, असीं कोई गुनाह नहीं किया तो जुर्माना नहीं करांगे। चौथी गल जिहड़ी तूं कहना मेरी लड़की का रिश्ता मंजूर कर लो, ये भी साडा फैसला नहीं सी, ये गुरु की संगत का फैसला है, तो ये संगत ही जानती, असीं इहदे विच कुछ नहीं कर सकते। फिर कह लगा फिर मरन वास्ते तैयार हो जाओ। महाराज कहते असीं तो पहला ही मरन वास्ते शहीद होने वास्ते आए हाँ। चंदू ने सिपाहियों को कह दिता है इन्हों खाण पीण वास्ते पदार्थ नहीं देने, पानी पीण वास्ते नहीं देना। जे पानी मंगण लाख रुपया दे करके पीण वास्ते पानी जिहड़ा वो देना है, लाख रुपया पहला देन फिर पानी मिलेगा। जे रोटी मंगण तो उदों आखना पहला लाख रुपया दो फिर रोटी मिलेगी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे दोषी दुष्ट चंदू तू की कहना कि सानू रोटी नहीं देनी, पानी नहीं देना, असीं परण करते हैं जिन्ना चिर तेरे घर में रहांगे एक दाना नहीं तेरे घर का मूँह च पावांगे तो ना पानी की कोसी है। सतगुरां ने ये वचन कर दिते ने। सो पहला दिन लंघिया, दूजे दिन सतगुरु पातशाह नूं उही सवाल दोहराए गए। महाराज ने पहला वाला जवाब दिता दृढ़ता वाला। सतगुरां नूं उबल दी देग में बिठाया गया है। तसीहे देने शुरू कर दिते यासा कानून के अधीन, क्योंकि कि यासा कानून बनाया सी उस सरकार ने कि जिहड़ा कोई सतपुरुष होवे ਉਹਦੇ खून ਦੀਆਂ बूंदां धरती ते नहीं डिगणियां चाहीदियां। ये इस्लाम का भी विचार सी कि जे सतपुरुष दीयां बूंदां खून दीयां धरती ते डिगणगियां तो धरती ते भुचाल आ जाएगा, बड़ा बड़ा पाप मानिया जाता सी। सो इस करके इन्हां दे खून नूं साड़ना है, धरती ते डुलना नहीं। तां देग दे विच उबालिया गया, तवी ते बिठाया गया, खून डुलना नहीं। शहीद का डुलदा खून जदों उदों गुरु प्यार वालों इनकलाब आता है, बदलाव आता है। सो उस वेले देग में उबालिया गया, उबलती देग में बैठे हुए धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की रसना तो पावन बाणी उचारण हो रही है। उलाहनो मैं काबू ना दियो, मन मीठ सुहारो कियो। हे वाहिगुरु मैं कोई गुलामा नहीं देता, मैं तो तेरे पानी में मिठा करके मनता पिया। मीत करा सोई हम माना, मीत के कर कुशल समाना। जो मेरा मित्र वाहिगुरु कर रहा मैं उसको मनता पिया, क्योंकि मित्र कभी अपने मित्र का माड़ा नहीं करता।
ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਹ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਲੋਹ ਦੇ ਥੱਲੇ 12.5 ਮਣ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਗਰ ਬਾਲਣ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਹ ਤਪ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਲੋਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੋਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੋਹ ਤਪਾਓ ਛੇਤੀ, ਸੂਰਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਰੇਤ ਉਸਦੀ, ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਓ ਛੇਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਲੋਹ ਕੋਨੀ ਤਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਹ ਤਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਇਸ ਲੋਹ ਦੇ ਜਾਤ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕੰਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੱਗ ਵਰਸੈ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਤਾਰਦਾ, ਖਾਲੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਜੀਆਂ ਵੀਰ ਮਿੱਠਾ ਹਾਲ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੂਪਿਆ ਚੀਖੇ ਤੇ ਧਾਨੀ ਮਾਰਦਾ। ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧਾਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀਆਂ ਵੀਰ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤਬ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਈਂ ਜੀਆਂ ਵੀਰ ਛੋਟੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਦਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਸਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀਆਂ ਵੀਰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਖਤਾ ਕੋ ਖੋਦਾ ਕੋ ਚੰਦਨ ਦੇਵ। ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅਮੀਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀਰਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅਮੀਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੇਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਰਨੀ ਕਹਿ ਪਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਸੇ ਭੁਜੇ ਨੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਤ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸੋ ਅੱਠ ਪੈਰ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ,
एक घटना कह के मैं समाप्ति कर देनी है। जिहड़ी असीं छबील लाउने, ये छबील कितों चली, ध्यान देना कि हर चीज़ का इतिहास होता है। भावें छबील पहला भी चलती सी, पर गुरु घर में कितों चली, मस्या पहला भी चलती होती सी, गुरु घर में कितों चली, क्योंकि गुरु घर का जो संबंध बनया वो वखरा संबंध है। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो, रात का समा होया ते चंदू की नूह जिहड़ी एक सिख की बची सी, बड़ी दुखी सी बेचारी। मेरे घर मेरा गुरु आया तो मैनूं तो चाहिए सी उन्होंने सोहने पलंगे उत्ते दिखाउंदी, मैं प्रसादा पानी सिखाउंदी, जल पानी सिखाउंदी, सेवा करती, पर मेरे घर में कोई नरादर हो रहा, दुख दिते जा रहे, बेचारी बड़ी दुखी। उसने थोड़ा जिहा दुध लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जल पाया, मिठा घोलिया है, जल पानी तैयार करके सतगुरां दे चरणां विच ले जांदा है। गरीब नवाज पातशाह के चरणां में मत्था टेकिया, रोण लग के सच्चे पातशाह मैं एक सिख की बच्ची हाँ, मेरे घर में तुहाडा सत्कार होना चाहिए सी, तुहाडी सेवा होनी चाहिए सी, पर अज मेरे घर में तुहाडा नरादर हो रहा, दुख दिते जा रहे हैं। मैं किड्डे माड़े भागां वाली हाँ, जे तुसीं मेरा जन्म किसी सिख के घर में दिता सी तो मेरा सहुरा परिवार भी मैनूं सिख ही बखशो, जे मुझे पापियां की नौ ना मैनूं बनाउंदे हो। आखिर दाता मैनूं चंदू की नूह समझ के मेरा जल पानी ना मोड़दे, ये जरूर छकियो। साधु पातशाह कहने लगे बेटा तेरा जल पानी प्रवान है, पर अज नहीं असीं छकना, असीं परण कीता कि असीं इत्थे ना रोटी खानी है, प्रसादा छकना है, तो ना ही असीं इहदे घर पानी की घुट पीनी है। धीए तू जो जल पानी लैके आई है प्रवान है, अज नहीं छकांगे, पर जदों असीं शहादत ते जावांगे तो साडी शहादत वाले दिन छबीलां लग्या करनगियां, उस दिन मैं संगत दे विच आ करके तेरा जल पानी छकिया करांगा। ये वचन धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने कीते। कई निकम्मे जे प्रचारक इहदा खंडन भी करते हैं, कहते जी चंदू का दुष्ट सी, उहदे घर विच इस तरह का किवें पैदा हो सकता, तो जे हरनाल से दैन के घर में भगत का इलाज पैदा हो सकता तो चंदू के घर में भावना वाला भी पैदा हो सकता, जे गुरु घर में निकम्मा प्रीति चंद पैदा हो सकता। ये तो खेड रब की है ना, कित्थे की पैदा करना है। ऐसा नहीं जरूरी कि जे माँ बाप माड़ा तो अगे पुत ने भी माड़ा निकलना, जे माँ बाप चंगा है तो पुत ने भी चंगा निकलना। ये खेड तो रब के वास्ते, कईयों का माँ बाप चंगा धियां पुत माड़े निकलते, कईयों का माँ बाप नहीं चंगा होंदा धियां पुत चंगे निकलते। ये खेड करते दी है। सो गुरु प्यार वालियो उस वेले महाराज ने वचन कहे, फिर वो बेटी रोन लग पई, कहन लगी सच्चे पातशाह हुण नहीं मैं इस दुष्ट परिवार के घर में रहना, तो मैं हुण जिउंदी भी नहीं रहना, किन्ने क दिन तुसीं होर ये दुख झलने ने, मैनूं भी नाल लै जाओ। महाराज कहंदे बस अज दी रात, कल नूं असीं भाणा वरता देना। अगला दिन चढ़िया, फिर चंदू ने उही सवाल दोहराए। महाराज कहंदे चंदू भावें लख वार दोहरा, साडा जवाब इक्को ही होवेगा कि ये फैसला साडा नहीं परमेश्वर दा है, गुरु की संगत दा है। असी तेरे अगे झुकण वाले नहीं, मौत कबूल है पर तेरे अगे झुकांगे नहीं। सो उस वेले आख्या तुहाडी कोई आखिरी इच्छा? महाराज कहंदे इच्छा पूरी करने वाला तो वाहिगुरू, तू कौन इच्छा पूरी करने वाला? इच्छा साडी कोई नहीं, साडा मन करता है कि असीं इशनान करना चाहुंदे हां। चंदू खुश होया कि इन्हां दा शरीर अग नाल सड़िया होया, जदों पानी पवेगा तो होर दुखी होणगे, ते इन्हां नूं जदों दुख होवेगा तो आपे मेरे बचन बन जाएंगे। उस वेले कहन लगा तुसीं इशनान कर लो। हुण सतगुरां तो तुरिया नहीं जांदा, अग दे नाल चरण भी जिहड़े गुरु ही होए पए है। तदी तवी ते बैठे सन महाराज। भाई जेठा जी भाई प्राणा जी ने मोढियां ते चुकिया है, रावी दरिया दे विच लै करके आए ने। महाराज ने इशनान किया है, महाराज ने जपजी साहिब का संपूर्ण पाठ किया है ते आख्या सिखो अज हुण असीं शरीर त्याग देना, हुण समा साडा पूरा हो गया। सो जा करके साडे पुत्तर नूं ये साडा हुक्म सुना दिओ कि हुण तख्त की रचना करनी है, मेरी ते पीरी का सिद्धांत लागू करना है। जिथे प्रचार नाल दुनिया नूं परमेश्वर नाल जोड़ना है, उत्थे तलवार नाल गुट्टां दा सौदा भी लाउणा है। हुण कल्ले प्रचार नाल नहीं सरना, हुण तलवार की भी लोड़ पैनी है। सो उस वेले गुरु प्यार वालियो सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अज दे दिन सो विद्वानां दी लिखत मुताबक
उदों 1663 विक्रमी दिन से 1606 ईस्वी से। सो गुरु प्यार वालिओ 22 जेठ सुदी चौथ जेठ की मस्या तो बाद 4 दिन बाद सतगुरु अर्जन देव पातशाह ने शहादत का जाम पीता है। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। सदा वास्ते परमेश्वर दे विच लीन हो गए धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी। एक विद्वान लिखता है, जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ के जिस्म को वो खुशी से तोड़ देते हैं। ना ताजो तख्त ना भूलों की हसरत है, खुदा भी दे खुदाई तो वो मोड़ देते हैं। जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। हयात का अर्थ, हयात शब्द फारसी का जिहदा अर्थ है अमृत। कहते जी शहीद की मौत होंदी वो अमृत बन जाती है। जिवें अमृत मुर्दे को जिंदा करता, जी जमीर मरी होवे ओदी जमीर को जिंदा करता, इस तरह जो शहीद शहीदी दिंदा है ओदी शहादत भी मुर्दियां दे विच अणख का जज्बा भर दिंदी है ते दुखों का नाश करती है। सो अखीरला बचन कह के समाप्ति करा। एक विद्वान ने लिखा, जी मेरी ते पीरी दी दो तलवारां, वो तलवारां उस तवी विचों पैदा हुई जी तवी के 8 पैर सतगुरां ने चांबड़ा लाया। उस विद्वान के बड़े सोहने बोल ने, वो लिखता है, छाले ते एक एक फुल विचों गुलजार पैदा हो गए, सुखमणी साहिब विचों चंडी दी वार पैदा हो गई, देव देखते उबलते पानियों तूफान पैदा हो गया, सुनिया तवी दे लोहे विचों तलवार पैदा। वो मीरी ते पीरी दी दो तलवारां जिहड़ियां गुरु अर्जन साहिब ने कहनियां ने, वो 8 पैर के चमड़े विचों उस तवी विचों पैदा हुए, जिन्हों ने जालम का दुष्टां का नाश किया है। अज के दिन महान शहादत का जाम किया है। तो सतगुरां की शहादत के दिहाड़े विचों असीं की सिक्ख्या लैनी है कि आपां भी अपने धर्म नूं निरपक्ष होकर निभाइए। जिन्ने मर्जी दुख आ जाण साडे जीवन दे विच, कदे भी सिख ने अपना धर्म नहीं छड्डना, अपना धर्म अंतले सवासां विच निभाउणा है। एक होर नुकता है कि शेख फता जिहड़ा वो गुरु अर्जन देव जी को शहीद कराउण वाला है। जिहड़ा सिख होवेगा वो भुल के भी कभी शेख फतेह की कबर से खीर नहीं लैंदे। अज बहुते सिख जिहड़े खीर लैके जाते, ये तुहानूं भी पता, तुहाडे विचों भी हो सकदा कोई होवे, पर जे तुहानूं नहीं सी पहलां पता कोई वखरी है। पर इतिहास तुसीं आप भी पढ़ सकते हो कि शेख फतेह ने गुरु अर्जन देव को शहीद करवाया है। जे असीं गुरु के दुश्मन के घर खीरां लैके जाइए तो फिर गुरु साहब जी के असीं सिख नहीं हो सकते। सो इस करके सिख ने तां केवल ते केवल सब सिखण को हुक्म है। गुरु मानियो ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगना है, खंडे बाटे का अमृत छकना है, गुरु दसी मर्यादा भी करना है, नाम बाणी सत्संगत अभ्यास करना है, शुभ कर्म करने तां ही साडा भला होवेगा। गुरु कृपा करे सानूं मत आ जावे। आओ गुरु के कीर्तनी सिंह पहुँच गए। गुरु की बाणी का कीर्तन श्रवण करके लाभ प्राप्त करिए। इतनी सेवा प्रवान करियो।